Let's start with the next chapter, that is electrons and photons. इस चैप्टर में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, नॉर्मली दो है। एक तो आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, दूसरा एज यू नो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। दो ही चीजें हैं, उन दोनों पे ही क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। So without wasting time, let us start with question number 1. When the frequency of light 2 nu 0 is incident on a metal plate, the maximum velocity of electrons emitted is v1. When the frequency of incident radiation is increased to 5 nu 0, the maximum velocity of electrons emitted from the same plate is v2. The ratio of v1 to v2 is, आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेटल प्लेट की हम बात कर रहे हैं, वी हैव अ मेटल प्लेट, लेट अस से, इस पे there is light which is incident over here, okay, and few electrons will be emitted. So if the energy of photon is E, and of course you know it is h nu, then if work function matlab the energy required to free the electron from metal surface, if it is phi 0, okay, then the energy which electrons take up with themselves is kinetic energy. So total energy incident on the metal plate is used in two ways. First, to free electrons, and then the remaining is with electron in the form of kinetic energy. This is what you should know. And of course, you know that E is phi 0 plus kinetic energy is half mv square. ये है आपका आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन. आई विल बेटर राइट डाउन E in terms of frequency. तो h nu. अब केस 1 में आपके पास इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी आपको बोला है 2 times of nu 0. This is work function phi 0 plus half m v1 square. Okay, right? Similarly, second case में आपको बोला है फ्रीक्वेंसी जो है it is 5 times of nu 0, that is phi 0 plus half m v2 square. Okay, and you are supposed to find out ratio. Now रेशियो फाइंड करना है अगर आपको, तो यू हैव टू गेट रिड ऑफ दिस phi 0. अगर आपको याद होगा, वर्क फंक्शन phi 0 is equal to h nu 0, where nu 0 is threshold frequency, the minimum frequency required to have photoelectric emission. तो आपको ये पता होना चाहिए that phi 0 can be written as h nu 0. तो इनको हटा देता हूं मैं यहां से, and I will be writing this as h nu 0, h nu 0. तो what you will get is, अगर आप पहले इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो 2h nu 0, यहाँ पे h nu 0 है तो 2 minus 1 is 1, तो ये h nu 0 equal to 1 half m v1 square आएगा, राइट? और यहाँ पे ये 5 में से एक गया, 4 आएगा, तो दिस इज 4 times of h nu 0 equal to half m v2 square. This is what you're going to get. अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप डिवाइड कर दोगे तो आपको v1 by v2 स्क्वायर मिलेगा. ओके, तो व्हेन यू डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 and 2, you will get divide 1 by 2. So you will get this as half m v1 square upon half m v2 square equal to h nu 0 upon 4 times of h nu 0, मतलब v1 square by v2 square equal to 1 by 4, मतलब v1 by v2 is equal to half. तो ratio should be half, option number A. Okay, so you will be getting option number A as the right answer. All right, good. Next question, question number 2. When a metallic surface is illuminated
with radiation of wavelength lambda. The stopping potential is V. If the same surface is illuminated with radiation of wavelength 2 lambda, the stopping potential is V by 4. The threshold wavelength for the metallic surface is. So the same equation that you write down, आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ही यूज होना है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन को हम चेंज करेंगे. अगर आपको याद है, एनर्जी ऑफ फोटोन h nu इज वर्क फंक्शन phi0 प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी इज h nu माइनस phi0. और अगर आपको याद होगा, अगर आपको अच्छे से वो कॉन्सेप्ट समझा है, ये हमारे पास एक ट्यूब होता है, यहाँ से हम फोटोन इंसिडेंट करते हैं. ये इमिटर प्लेट होता है, ये कलेक्टर प्लेट होता है. जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए, दे विल गो टुवर्ड्स कलेक्टर प्लेट, बिकॉज नॉर्मली वी कीप कलेक्टर प्लेट एट पॉजिटिव पोटेंशियल नॉर्मली, बट हम उसके पोटेंशियल को चेंज भी कर सकते हैं. तो आपने अगर उल्टा पोटेंशियल कर दिया, इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, या फिर आपने कलेक्टर प्लेट को कंपैरेटिवली पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा है, जैसे कि ये 2 तो ये 5 वोल्ट. ओके, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन, यू सी, अगर सामने वाला प्लेट हायर पॉजिटिव पोटेंशियल पे है तो इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड. बट अगर उल्टा किया है, सामने वाले प्लेट को आपने नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा है, तो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी पे. ओनली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैन रीच. तो इन दैट केस वी हैव सीन, हम क्या करेंगे, हम इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे. कब तक बढ़ाते जाएंगे? जब तक इलेक्ट्रॉन स्टॉप नहीं हो जाए. तो उस केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी स्टॉप हो जाएगा, एंड देन दिस इज EV0. तो काइनेटिक एनर्जी इज EV0, दैट इज h nu, और ये है आपको पता है h nu 0 है, और nu आपको पता है इट इज c by लैम्बडा. तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लैम्बडा, nu 0 से आ गया आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्बडा 0. तो ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा आपको. यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन. नाउ दो केसेस दिए आपको. केस 1 जिसमें वेवलेंथ लैम्बडा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल V है, मतलब EV इक्वल टू HC बाय लैम्बडा माइनस HC बाय लैम्बडा 0. केस 2 जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल V बाय 4 है और वेवलेंथ 2 लैम्बडा है. ओके, एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मतलब आपको लैम्बडा 0 फाइंड करना है. तो लैम्बडा 0 को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? ऑफ कोर्स इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट ही कर सकते हो. तो यू हैव टू सॉल्व दिस टू इक्वेशंस. ओके, तो यू बेटर सॉल्व दिस इक्वेशन बाय योरसेल्फ. करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ सब्ट्रैक्ट ही करना है इसको. जस्ट माइनस 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 एंड देन सॉल्व. तो सॉल्व करो इसको, माइनस करो, प्लस करो, वो आपके ऊपर है. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस बिकॉज ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं इन रेगुलर थ्योरी क्लासेस. तो लैम्बडा 0 इज 3 लैम्बडा. इट टर्न्स आउट टू बी 3 लैम्बडा. तो आपको बस सॉल्व करके यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज लैम्बडा 0. तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो यू विल गेट ऑप्शन नंबर बी एज करेक्ट ऑप्शन. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Light of wavelength 500 nanometer is incident on a metal. So wavelength of light is 500 nanometer, that is 5 into 10 power minus 7 meter. It is incident on a metal with a work function 2.28 eV. The de Broglie wavelength of the emitted electron is. तो आपको पता होना चाहिए de Broglie wavelength of emitted electron is h by momentum. And you should know, of course, basic चीजें आपको पता होनी ही चाहिए, and I am expecting that you know. Kinetic energy is half mv square, half m square v square by m, half mv is momentum, momentum square by m. ओके, तो आपको p स्क्वायर मिल जाएगा 2mk, मतलब p मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 2mk. तो इसी इक्वेशन को मैं h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mk लिख सकता हूं. अब ऐसा क्यों लिखा?
क्योंकि जो बाकी गिवन इंफॉर्मेशन है उसको अगर मैं आइंस्टाइन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। मतलब आई एम सेइंग एग्जैक्टली ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, एच न्यू माइनस फाइव जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी इज एच न्यू मतलब एच सी बाय लैम्बडा माइनस वर्क फंक्शन 50। नाउ काइनेटिक एनर्जी हैज टू बी इन जूल्स क्योंकि वेवलेंथ मीटर में है, मतलब एसआई यूनिट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नॉट एसआई यूनिट। ईवी ये एसआई यूनिट नहीं है, आपको पता होना चाहिए। तो ईवी से आपको जूल में जाना पड़ेगा। ये जो है दिस विल बी इन जूल्स, क्योंकि आप एच की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करते हो, 6.623 जो भी इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू सी 3 इंटू 10 पावर 8। अब एक चीज याद रखना कि ये वैल्यू आपको बहुत बार लगने वाली है, तो इसको याद कर लो, या तो जूल में या तो ईवी में, जैसे भी। तो यू शुड नो व्हाट इज दिस, एंड लैम्बडा इज 5 इंटू 10 पावर माइनस 7। 50 इज 2.28 ईवी। ईवी टू जूल, ईवी से जूल में जाने के लिए, ऑफ कोर्स दिस इज वेयर यू गेट कंफ्यूज्ड, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम ईवी, मल्टीप्लाई बाय ई या डिवाइड बाय ई, दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। यू हैव टू डू दिस, आपको करना पड़ेगा ये। बाय द वे 6.6 into 3 is roughly 20, roughly okay। तो this is roughly 20 by 5 और a 10 power minus 34 plus 8 minus 26 plus 7 minus 19। तो अभी नहीं भी याद आ रहा होगा तो ये माइनस 19 आपको हिंट दे रहा है, मल्टीप्लाई करो ईवी टू जूल जाने के लिए। मतलब यहाँ पे मैं ई से मल्टीप्लाई करूंगा जूल में करने के लिए। तो 2.28 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 आएगा ये 1 जा ये 4 जा। तो यू जस्ट हैव टू डू कैलकुलेशंस हियर। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत आंसर हमारा गलत आएगा बिकॉज आई एम डूइंग रफ कैलकुलेशन, ओके। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन जब आप करोगे तो व्हाट यू शुड गेट इज दिस, काइनेटिक एनर्जी एज फार एज जो मैंने कैलकुलेशंस करके रखे हैं, आई एम गेटिंग दिस एज 0.2 into 1.6 into 10 power minus 19 EV, राइट, सॉरी जूल्स, ये जूल में है। गुड। तो जो भी वैल्यू मिलेगी कैलकुलेशन इज ऑफ कोर्स योर जॉब टू डू। 1.6 into 0.2 is 0.32, 0.32 into 10 power minus 19 is 3.2 into 10 power minus 20। तो ये 3.2 into 10 power minus 20 जूल आएगा। तो मिल गया आपको ये। तो अब लैम्बडा पी इज, आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा है, तो h by p, h is 6.63 into 10 power minus 34 upon root of 2 into m, m 9.1 into 10 power minus 31 kilogram into k 3.2 into 10 power minus 20। ये calculations, it's again your job, so it will come greater than or equal to 2.8 into 10 power minus 9। कैलकुलेशंस के लिए हमारे पास क्रैश कोर्स में टाइम नहीं होता है, तो आपको खुद तो करना है। माय जॉब इज टू टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन, a certain metallic surface is illuminated with monochromatic light of wavelength lambda. The stopping potential for photoelectric current for the light is 3v0. If the same surface is illuminated with a light of 2 lambda, the stopping potential is v0. Threshold wavelength for this surface for photoelectric effect is, उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हमने किया था, एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो आपको वही इक्वेशंस यूज करने हैं, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है दोनों केस में, वेवलेंथ दिया है इंसिडेंट दोनों केस में, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, which means this should go as assignment, क्योंकि same formulas you are supposed to use, it is just part of calculation। अगला क्वेश्चन,
when the energy of the incident radiation is increased by 20%, the kinetic energy of the photoelectrons emitted from the metal surface increased from 0.5 to 0.8 eV. The work function of the metal is. Question easy है, provided you remember kinetic energy is h nu minus phi 0, right? क्या बोला है क्वेश्चन में? When the energy of incident radiation is increased by, तो मैं ऐसा लिखता हूँ इसको, h nu की जगह पे I will write down E. Okay, तो kinetic energy increases from 0.5 to 0.8 eV, मतलब K1 आपको दिया है 0.5 eV and K2 is 0.8 eV, और E1 तो E1 है, लेकिन E2 is E1 plus 20%, मतलब 1.2 times of E1. तो of course 20% है, तो E1 plus 20% of E1, तो ये 20/100 होता है, मतलब 0.2 होता है. 0.2 में E1 ऐड करोगे तो 1.2 आएगा. सो दिस E2 इज 1.2 टाइम्स ऑफ E1. इतना आपको कम से कम पता होना चाहिए. अब आपके पास दो इक्वेशन है, K1 इक्वल टू E1 माइनस फाई 0. मेटल सरफेस चेंज नहीं हुआ, मतलब वर्क फंक्शन का कोई इशू नहीं है यहाँ पे. K2 इज इक्वल टू E2 minus phi 0, right? You are supposed to find out what is work function. तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. माइनस 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 और माइनस प्लस, मतलब ये तो गया, वर्क फंक्शन तो गया यहां से. ओके, तो वर्क फंक्शन गया, तो फिर K2 माइनस K1 इक्वल टू E2 माइनस E1. बट इसको मैं तो डायरेक्टली E2 माइनस E1 यहीं से लिख सकता था. आई कुड हैव डायरेक्टली रिटन फ्रॉम हियर E2 माइनस E1 कितना, तो ठीक है. नाउ E2 is 1.2 times of E1 minus E1. 0.2, मतलब K2 is 0.8, this is 0.5, this is 0.2 E1. तो ये 0.3 अपॉन 0.2 E1 आ जाएगा. तो E1 आपको मिल जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. डू नॉट फॉरगेट. आपको वर्क फंक्शन चाहिए, तो ये E1 की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो. ओके, देयरफॉर K1 is E1 minus phi 1. K1 की वैल्यू 0.5 थी, E1 की वैल्यू 1.5 है, तो phi 1 को यहाँ phi 0 वर्क फंक्शन को यहाँ शिफ्ट कर दो और इसको यहाँ लाओ, तो 1.5 माइनस 0.5, मतलब वर्क फंक्शन आपको मिल जाएगा 1 eV. ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट. तो अगेन इट वाज एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. A 200 watt sodium street lamp देखा होगा आपने. Nowadays you don't use sodium street lamp, you use LED lamps, and that too powered by solar panels. But earlier वो येलो कलर का लाइट जो होता था, that was sodium street lamp, वो बहुत बार खराब भी होता था, बहुत बार वो बंद चालू भी होगा, और वो बहुत ज्यादा पावर भी कंज्यूम करता था. So nowadays they are rare. Okay, but anyways, a 200 watt sodium street lamp emits yellow light of wavelength 0.6 micrometer. To be very frank, it is 0.6 micrometer, मतलब 6000 angstrom होता है. But in reality, sodium emits two different wavelength of 5890 and 5893 angstrom, 96 I guess. दो फाइन स्प्लिटिंग होता है, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग होता है. दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर करिकुलम, बट एनीवेज 6000 नहीं होता है, बट इन्होंने रफली 6000 बोला है. ओके, assuming it to be 25% efficient in converting electrical energy to light. तो जो भी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड किया है, ओके, 25% of that energy is being converted to light, only 25. Okay, the number of photons of yellow light it emits per second is. How many photons
per second it will emit. So you should know energy of photon, of a given photon, of a single photon. Okay, how do you find this out? This is really important because this is, of course, you know, it is h nu, ये सबको पता ही होता है, right? Energy of a photon is h nu, which is hc by lambda. Okay, so energy of a photon E is hc by lambda. H into C, 6.6 into 10 power minus 34 into 3 into 10 power 8. 6 micrometer, 0.6 micrometer मतलब 6 into 10 power minus 7 meter straight away. So 1 za and 2 za, 6.62 by 2 is 3.31. Okay, into 10 power अभी अभी किया था, ये 19 आता है, माइनस 19 आता है ये, क्योंकि माइनस 7 ऊपर जाएगा तो प्लस होगा 8 और 7 15 होगा, और माइनस 34 प्लस 15 इज माइनस 19, तो ये एनर्जी इन जूल्स है। तो ये हर एक फोटोन की एनर्जी है। ये मैंने क्यों किया, हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। सो यू आर सपोज टू फाइंड आउट नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ photons emitted per second. ओके, तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड का फॉर्मूला हमको चाहिए रहेगा। कैसे करोगे? व्हाट इज एफिशिएंसी? 25% एफिशिएंट मतलब क्या? मतलब जितना भी इसको इनपुट पावर है उसका सिर्फ 25% ये लाइट में कन्वर्ट करता है, मतलब 25/100 अपॉन, आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। नंबर पर सेकेंड, नंबर, ये ऊपर क्या लिखा है आपने, पावर, तो पावर बाय एनर्जी। क्यों? पावर इज वैट, व्हाट इज वैट, एनर्जी पर यूनिट टाइम, अपॉन एनर्जी, मतलब एनर्जी, एनर्जी डायमेंशनली, तो 1 अपॉन टाइम, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इज 1 अपॉन टाइम। ओके, तो चाहिए तो आप लिख लेना, एक काम करो, बेटर इज टू मेक अ नोट ऑफ द फॉर्मूला, number of photons, of course per second. Okay, so number of photons per second, obviously number of photons per second is power upon energy, क्योंकि पावर बाय एनर्जी का डायमेंशन 1 अपॉन टाइम के आते हैं। तो दिस इज व्हाट यू शुड नो, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस। ओके, सो नाउ, और मैंने 25/100 क्यों लिखा है, क्योंकि इनपुट पावर का 25% ही कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो आपके पास आ गया 25/100, पावर 200 वैट था, ऊपर दिया है 200 वैट क्वेश्चन में, और एनर्जी हमने 3.31 इंटू 10 पावर माइनस 19 फाइंड करके लिया। 1 जा 2 जा 50/3.31 इंटू 10 पावर माइनस 19 का ऊपर जाके प्लस 19 हो जाएगा। 50/3, 16 इंटू 3 48, रफली 1 जा एंड 16 जा, मैं रफली बता रहा हूँ, 16 या 15 जो भी आएगा, इट्स अप्रोक्सीमेट। ओके, तो 16 इंटू 10 पावर 19 इज 1.6 इंटू 10 पावर 20 या 1.5 इंटू 10 पावर 20, तो ऑप्शन नंबर ए, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। रफ कैलकुलेशंस हम लोग कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th, monochromatic radiation emitted when electron of hydrogen atom, okay,
jumps from first excited to ground state, irradiates a photosensitive material. Very good. Stopping potential is measured to be 3.57 volt. The threshold frequency of the material is. ये दो अलग अलग टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन पूछा है आपको. एक तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई में सीखते हो. आपको पता है हाइड्रोजन एटम में देयर आर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस मेनी टाइम्स. दिस इज ग्राउंड स्टेट, देन फर्स्ट मतलब ग्राउंड स्टेट मतलब n equal to 1, n equal to 2, then third, and then fourth, and then fifth. इन्फिनाइट लेवल्स होते हैं. तो जब भी ट्रांजिशन होगा ऊपर के लेवल से नीचे लेवल पे, वट एवर इट इज, देयर आर मेनी पॉसिबल वे ऑफ ट्रांजिशन. तो फोटोन इमिट होगा और जो फोटोन इमिट होगा वो एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे जाके हिट होगा. दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग इन द क्वेश्चन. इरेडिएट्स मतलब ये जो फोटोन इमिट हुआ है ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, ऊपर की लेवल से नीचे की लेवल में इलेक्ट्रॉन आया, उसकी वजह से फोटोन इमिट हुआ. वो फोटोन किसी फोटोसेंसिटिव मटेरियल पे जाके इंसिडेंट हुआ. इरेडिएट मतलब इज इंसिडेंट बेसिकली, राइट. तो what is threshold frequency given that you have work function of the metal surface? Now obviously first excited state, हाइड्रोजन एटम का पहला ऑर्बिट उसका ग्राउंड स्टेट होता है. सेकेंड ऑर्बिट ये फर्स्ट एक्साइटेड होता है, मतलब ट्रांजिशन इज फ्रॉम 2 to 1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज एनर्जी इन्वॉल्व हियर. E is equal to hc by lambda, और आपको पता है 1 by lambda is Rydberg constant R, 1 by p square minus 1 by n square. तो p यहाँ पे 1 है क्योंकि ट्रांजिशन पहली लेवल में होगा और n की वैल्यू 2 है क्योंकि सेकेंड लेवल से हो रहा है. तो you have this as R 1 minus 1 by 4 मतलब 3R by 4. ओके, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा. सो फ्रॉम 1 and 2 you have E is equal to hc by lambda is 3R by 4. रिड्सबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए. अगर नहीं पता है तो और एक तरीका है, ये थोड़ा लॉन्ग लेंथी मेथड. इफ यू वांट टू हैव शॉर्टकट मेथड, ओके, कोई इशू नहीं है, वो भी एग्जिस्ट करता है. कैसे एग्जिस्ट करता है? हमने ये फॉर्मूला देखा था क्या, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट इज -13.6 by n square eV. तो डेफिनेटली आपको सेकेंड ऑर्बिट माइनस फर्स्ट ऑर्बिट का ट्रांजिशन आपको एनर्जी देगा. तो यहाँ पे दैट्स इट, यू हैव टू जस्ट पुट -13.6 by 2 square, माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कर रहे हो बीच में, प्लस 13.6 by 1 square. तो ये आपके पास मिल जाएगा -13.6 by 4, माइनस ऑफ माइनस इज +1. तो इसको सॉल्व करो तो यू विल गेट दिस एज, अब ये भी आपको पता है -13.6 by 4, ये आप हमने कितनी बार तो देखा था कि ये 3.4 आता है. ओके, दिस इज 3.4, तो ये पता होना चाहिए. This is 3.4 with a negative sign, -3.4 plus 1 is -2.4. तो ये -2.4 eV फोटोन का एनर्जी हो गया. अब ये फोटोन का एनर्जी हो गया, आपको पता है एनर्जी ऑफ फोटोन इज यूज्ड टू ओवरकम वर्क फंक्शन एंड रिमेनिंग गोज एज काइनेटिक एनर्जी, राइट. नाउ आपको पता है काइनेटिक एनर्जी मतलब यू कैन हैव दिस एज EV0. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E into stopping potential. ओके, तो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है, राइट. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है तो φ0 आपको अगर वर्क फंक्शन मिल गया E माइनस EV0, तो E ये -2.4 है, EV0 ये 3.57 वोल्ट है. तो यू फर्स्ट फाइंड दिस आउट टोटल, जो आपके पास आ रहा है -6 पॉइंट समथिंग, मेरा कैलकुलेशन 6.63 बता रहा है. ओके, वर्क फंक्शन नेगेटिव नहीं होता है तो हम मॉड वैल्यू ले लेंगे.
तो mod of work function is 6.63 ev. This is what you get. आपको पूछा है threshold frequency. You should know work function is h nu 0. तो nu 0 is work function by h. वर्क फंक्शन अभी अभी फाइंड किया 6.63 और ये h की वैल्यू आपके पास है, तो 6.63 वो ईवी में था, उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपॉन दिस इज 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34. ये और ये तो कैंसिल ही हो गया, तो 1.6 इंटू 10 पावर, अभी एक काम करो जस्ट टू मेक इट लिटिल इजियर, 16 इंटू 10 पावर माइनस 20 और ये प्लस आ जाएगा तो 14 आ जाएगा. 16 इंटू 10 पावर 14 इज द फ्रीक्वेंसी. 1.6 इंटू 10 पावर 15 दिया है, ठीक है, दैट इज ओके, right? This is how you are supposed to solve. Question is not very difficult. Of course, if you make a choice of finding out energy as hc by lambda, 1 by lambda is r 1 by p square minus 1 by n square, फिर थोड़ा सा लेंदी होगा वो तो, लेकिन वो आंसर डायरेक्टली जूल में मिलेगा. हाँ, ये ईवी में है. तो दिस आर द फ्यू थिंग्स. तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए उसके लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. If the momentum of an electron is changed by p, then the de Broglie wavelength associated with it changes by 0.5%. The initial momentum of electron will be. क्वेश्चन में आपको बोला है that you are changing the momentum by p, मतलब डेल्टा p आपको p दिया है ना, तो मोमेंटम का चेंज आपको p दिया हुआ है. सो एंड दे आर आस्किंग यू व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम. तो इसको कैसे फाइंड करोगे, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता है, यू नो दैट lambda is h by p. Okay, right? And you have been told that change in the wavelength, de Broglie wavelength, is 0.5%. मतलब डेल्टा लैम्बडा बाय लैम्बडा इंटू 100 दिया है आपको, परसेंटेज चेंज वो दिया है. By the way, if you remember chapter number 1, standard 11th, propagation of error, delta lambda by lambda is equal to delta p by p, क्योंकि h तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में क्या ही चेंज होगा, नथिंग. तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. नाउ दिस इज समथिंग यू नीड टू नो. गुड. आपको डेल्टा लैम्बडा बाय लैम्बडा दिस इनटू 100 इज गिवन टू यू. तो अगर आप दोनों साइड को मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो तो ये परसेंटेज चेंज दिया है आपको, तो यू हैव बीन गिवन परसेंटेज चेंज, या तो फिर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0.5% चेंज. हाँ, मतलब 5 by 100 मतलब 1 by 20. हाँ, तो 1 by 20 वो बताना चाहिए. सो दिस इज व्हाट यू शुड नो. तो डेल्टा लैम्बडा बाय लैम्बडा is, since delta lambda by lambda into 100, this is given to you as 0.5%, which means delta lambda by lambda is 5 by 100. 5 by 100 आएगा ना, 0.5%. 0.5 by 1000 आएगा ये. 0.5%, 5% नहीं है वो, 0.5% है. हाँ, 0.5% है वो. This is what you are going to get. So now obviously you have, therefore you have this as 5 by 1000 मतलब 1 by 200. This is 1 by 200. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. तो 1 by 200 इक्वल टू डेल्टा p by p. आपको पूछा है इनिशियल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालोगे, डेल्टा p by p, so it is p2 minus p1 by p1.
Now this is what it is. So just solve this. You have to solve this. तो ये आएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए आने वाला है, ऑफ कोर्स, बिकॉज इट इज क्वाइट सिंपल. तो P2 by P1 प्लस, मतलब -1 इक्वल टू 1 by 200. You just solve this. इसको सॉल्व करो, you will be getting option number A, 200p. So that's all you're supposed to do. So remaining calculations I am going to keep it for you. तो आपको यहाँ से इनिशियल मिल जाएगा. हो गया सॉल्व, कुछ नहीं करना है. इनफैक्ट आपको सीधा सीधा बोला है, मोमेंटम इज चेंज बाय पी, डेल्टा पी सीधा सीधा दिया है आपको. इट इज स्ट्रेट अवे गिवन टू यू. तो व्हाई आई हैव टू टेल यू कि दिस इज P इक्वल टू डेल्टा P इंटू 200. सिर्फ कंफ्यूजन क्या है, नोटेशन. ये इनिशियल होता है, इसको इनिशियल. अरे डेल्टा P तो P ही बोला है ना, तो 200 टाइम्स ऑफ P हो गया, ऑप्शन नंबर ए, खत्म. अगला क्वेश्चन. A beam of cathode rays is subjected to crossed electric and magnetic field. Crossed electric and magnetic field. This is important. Okay. The fields are adjusted such that the beam is not deflected. मतलब जो बीम है वो स्ट्रेट जाएगा, इट्स नॉट डिफ्लेक्टेड. नॉर्मली क्या होता है, व्हाट आर कॉल्ड कैथोड रे, मतलब इलेक्ट्रॉन का रे होता है वो. जो आपके पास पुराने CRT मॉनिटर थे या फिर पुराने टीवी सेट्स थे, कैथोड रे ट्यूब, उसमें वो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं एक सोर्स से. तो क्या होता था, ये आपके पास वो जो आपके पास टीवी था, यू हैड अ टीवी समथिंग लाइक दिस, और here you used to have screen, viewing screen यहाँ पे था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता था. then electrons will hit the screen at different points and because of fluorescence colors were generated. अगर गलती से आपने आजू बाजू में मैग्नेट रख दिया तो कलर अलग अलग गड़बड़ा जाएगा. why? because you know electrons are charged particles and moving charged particles with velocity v, if they are in vicinity of near magnetic fields, a force acts which is q v bar cross b bar, and that force ये चार्ज पार्टिकल्स को सर्कुलर ट्रैक भेज देता है. तो ऐसा था कि उस केस में जाना था स्ट्रेट लाइन में, वो जाके ऐसा कहीं तो हिट करेगा, उसका कर्वेचर चेंज हो गया, उसका पाथ चेंज हो गया. इसलिए बोलते थे कि मैग्नेट्स को टीवी के आसपास मत रखो. ओके, गुड. अब नॉर्मली अभी भी बोलते हैं, क्योंकि साउंड पे भी उसका इफेक्ट होता है, स्पीकर्स पे, क्योंकि स्पीकर इटसेल्फ वर्क्स ऑन मैग्नेट. ओके, गुड. तो एनीवेज, तो दिस इज समथिंग यू शुड नो. अभी इन्होंने बोला है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा सेट कर दिया कि बीम जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, इट इज गोइंग स्ट्रेट. गुड. द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द कैथोड रे इज गिवन बाय, first of all you need to know what is specific charge. Specific charge is the ratio of E by M, charge to mass ratio, उसको स्पेसिफिक रेशियो बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं. तो स्पेसिफिक चार्ज मतलब E by M. वैसे इसको सॉल्व करने की हमको जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी होता है which is given by E square by 2VB square. Okay, but if you want to solve, you can solve, no issues. अब डिफ्लेक्शन नहीं होने का क्या मतलब? डिफ्लेक्शन नहीं होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज है, तो Q F is equal to Q into E, electrostatics. Force due to electric field is Q into electric field. Okay, डिफ्लेक्ट नहीं होने का मतलब होता है since there is no deflection, since there is no deflection, it means force due to electric field
is equal to force due to magnetic field. Okay, so force due to electric field is Q into E. This is QVB, right? Cancel and cancel. V is equal to E by B. Okay, equation number 1. Good. अब आपको ये पता होना चाहिए, जो आपको ऑलरेडी पता है, जब आप एक चार्ज पार्टिकल को एक पोटेंशियल डिफरेंस में रखते हो, ईवी का डेफिनेशन ही ऐसे आया, हमारे पास इलेक्ट्रॉन था, हमने उसको पोटेंशियल डिफरेंस वी में रख दिया, फिर ये इलेक्ट्रॉन will start accelerating. When it starts moving, it starts gaining kinetic energy. Then you say kinetic energy gained by electron is E into potential difference, मतलब half mv square equal to ev. This is what you say normally. Okay, तो चार्ज पार्टिकल को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q into V, and this is half mv square Q into V. ये V और V कैंसिल मत कर देना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, वो वेलोसिटी है, नहीं तो पता लगा उड़ा दिया. सो दिस इज नॉट व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू. और चार्ज तो E है, बिकॉज ऑफ कोर्स बात ही इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे ट्यूब मतलब कैथोड रेज मतलब इलेक्ट्रॉन्स. गुड. अब यू वांटेड टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ E by M, तो यहां से आपको मिल जाएगा E by M as V square upon 2 times of potential difference, but V is E by B from equation number 1. Okay, so you have this as E square upon 2B square V. So E square upon 2 VB square, option number D, as I told you, right? So crossed electric and magnetic field such that there is no deflection, मतलब force due to electric field is balanced by force due to magnetic field. This is what they are trying to tell you. Question number 11th. The number of photoelectrons emitted for light of frequency nu, frequency is higher than threshold, मतलब तभी emission होगा, नहीं तो emission क्यों होगा. Okay, yes. So आपको पूछा है frequency is proportional to what? The number of photoelectrons emitted for light of frequency nu, number का मतलब समझ रहे हो आप, नंबर. इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था, ये आपके पास एक इमिटर प्लेट है. होता क्या है, यहाँ पे एक सोर्स होता है, यहां से इस सोर्स से फोटॉन्स इमिट होंगे. अगर इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो इमिशन होगा. एक फोटोन, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का इमिशन. नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाना, इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ाना, लेकिन हर एक फोटोन का एनर्जी कांस्टेंट रखना. तो इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाना, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ाना, राइट? करेक्ट. तो नंबर किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा. तो ऑप्शन नंबर पी. सिंपल क्वेश्चन, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन, द वर्क फंक्शन ऑफ अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल इज 6.2 eV. The wavelength of the incident radiation for which the stopping potential is 5B lies in which region? आपके पास वर्क फंक्शन phi0 आपको दिया है, that is 6.2 eV. आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, that is 5V. ओके, राइट. वेवलेंथ पूछा है आपको,
You have been asked wavelength and of course आपको पता ही है energy of photon is work function plus kinetic energy. वर्क फंक्शन EV में है, मतलब 6.2 EV है, और काइनेटिक एनर्जी फॉर ये इंपॉर्टेंट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला हो तो काइनेटिक एनर्जी 5 EV आएगा. 5 वोल्ट मतलब 5 EV काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो ये 5 आएगा. 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मतलब काइनेटिक एनर्जी इज 5 EV. ये समझना चाहिए. 2 बोला होता था 2 EV. ओके, तो दिस इज 11.2 EV. ये आ गया आपके पास एनर्जी ऑफ फोटोन. अब E इज hc बाय लैम्बडा और 11.2 मैं इसलिए बोल रहा हूँ hc की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, बिकॉज इफ यू नो दिस calculations are pretty simple. Then 11.2 into 1.6 into 10 power minus 19 मैंने जूल में कन्वर्ट किया इसको, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल टू hc अपॉन ये पूरा नंबर, this whole number. So let me make some space. Good enough. अब h की वैल्यू 6.63 into 10 power minus 34 into 3 into 10 power plus 8 upon 11.2 into 1.6 into 10 power minus 19. 1 and 4 रफ करना है. अगर 4 इधर 12 नीचे भी 12, 11.2 रफली, लेकिन 12 अपॉन 11 स्लाइटली ग्रेटर देन 1. ओके, मैं इसको 1.1 मान लेता हूं अंदाजा. 10 पावर माइनस 34 प्लस 8 माइनस 26. ओके, माइनस 26 नीचे का ऊपर आके प्लस माइनस 26 प्लस 19 माइनस 7, 10 पावर माइनस 7 बराबर. ऐसा करते हैं इसको हम लोग 1.1 इंटू 10 पावर प्लस 3 इंटू 10 पावर माइनस 3, सिर्फ 10 पावर प्लस 3 माइनस 3 एडजस्ट किया. क्यों एडजस्ट किया? मुझे ये चाहिए एंगस्ट्रॉम में. 1.1 इंटू 10 पावर 3, 1 into 10 power 3, 1000, 1100. 1100 is which region? कैसे विजिबल? UV होता है वो. ओके, दिस इज अल्ट्रा वायलेट रीजन, ऑप्शन नंबर C. सो विजिबल स्टार्ट्स फ्रॉम 3500 और 3000 से स्टार्ट होता है. पहला ही मिलता है आपको वायलेट, वायलेट से कम अल्ट्रा वायलेट. सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है रेड 7000, उसके ऊपर इंफ्रा रेड. so this is what you have. So ultraviolet. So this is how you are supposed to solve this particular question. Next question. A particle of mass 1 mg. Okay, 1 mg मतलब 1 milligram. Okay, so 1 milligram है ना, 1 mg बोला है, ठीक है. yes, 1 milligram है. has the same wavelength as an electron moving with velocity 3 into 10 power 6 meter per second. The velocity of particle is, देखो wavelength of particle is equal to wavelength of electron. You of course you know this is h upon momentum of particle, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. h कैंसल, मतलब मोमेंटम इक्वल बोला है. मैं तो डायरेक्टली बता दूंगा. इफ यू वांट टू सॉल्व दिस इन अ शॉर्टकट वे, यू नो दैट वेवलेंथ इज h by p, राइट. h तो वैसे भी कांस्टेंट है बराबर, वेवलेंथ भी सेम दिया है, मतलब मोमेंटम ही कांस्टेंट बोला है. सिंस lambda and h both are
कॉन्स्टेंट्स, मतलब मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछा है आपको, तो me बाय एम पी इंटू वी ई। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31। दिस इज मिलीग्राम, मिली 10 पावर माइनस 3, उसका भी मतलब वो भी ग्राम में, तो मैं लिख ही देता हूँ -6 होगा। ओके, तो 1 मिलीग्राम मास ऑफ पार्टिकल इज 1 mg, दैट इज 1 मतलब 10 पावर माइनस 3 g, मतलब 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 kg, तो 10 पावर माइनस 6 किलोग्राम आपको मिलेगा मास ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ आपको इलेक्ट्रॉन दिया है 3 इंटू 10 पावर 6, तो ये आपके पास आ गया 9 टू 3 27, 10 पावर माइनस 31 एंड प्लस 12, क्योंकि ये भी ऊपर जाके प्लस होगा, माइनस 19, 10 पावर माइनस 19, मतलब 2.7 इंटू 10 पावर माइनस 18 है क्या, ऑप्शन नंबर सी। खत्म। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ऐसा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, राइट। So we are good with this topic, and that's it. We'll stop here for today.